Hello students, yesterday we have discussed if the given points are collinear then how to find out the answer. If the given points are collinear then how to prove those points are collinear. That's also yesterday's our intention. Today here there is one different example. Here also we are going to use that area of triangle formula but in a different way. Look here. If A minus 5 7, B minus 4 minus 5, C minus 1 minus 6 and D 4 5 are the vertices of a quadrilateral, find the area of the quadrilateral ABCD. Do you understand what is written? Here what is happened? Yesterday question was different one. In the yesterday's question what was given? Find the area of triangle, it was directly given. But here question is that find the area of quadrilateral. But we haven't seen how to find out the area of quadrilateral. What is formula? That is question front of us. Those are the question front of us. Do you understand? But we can find it easily. Again some of you they may think like that, what here which quadrilateral is not mentioned, then how to find out area? Here we have to consider common quadrilateral and find out the area. How to find out? I am going to start this example. Look here. Okay. Solution given. What is given? First of all, given points I will write here. A minus 5 7, B minus 4 minus 5, C minus 1 minus 6 and D 4 5 and D 4 5 are the vertices of quadrilateral ABCD. Those are the what? Vertices of quadrilateral ABCD. Okay. For understanding purpose I will draw here one figure. It may happen it looks like as a rectangle, but it is not a rectangle. We have to consider it is general quadrilateral. Look here. I have drawn its one diagonal also. Now look this figure. Those are the coordinates of the, or we can say vertices of the quadrilateral, and given coordinates are present over here. Look here. Those are the vertices of the quadrilateral and coordinates are also given. Now we have to draw like that figure for our understanding purpose to find out the area of this given quadrilateral. Here ABCD is given, that's why I have written ABCD, and I have divided this triangle in that quadrilateral in two parts. I have divided this quadrilateral in two parts. Now suppose you will observe carefully, then you will come to know that this quadrilateral ABCD is divided in two triangles. One triangle is ABD and second triangle is CBD. Means we have to find out the area of two triangles for finding the area of quadrilateral ABCD. Means we can write like that. Now area of quadrilateral ABCD is equal to what? Area of triangle ABD plus area of triangle BCD or CBD. कौन सा भी ले सकते हो तुम. Okay, we will consider here BCD. Okay, what I have written? Area of quadrilateral. Now area of quadrilateral ABCD is equal to area of triangle ABD plus area of triangle BCD. We will consider this is the first equation. Okay, now you know that how to find out the area of triangles. First of all, you will find out the area of triangle ABD, then you will find out the area of triangle BCD. Okay, then area of triangle ABD is equal to, we know the formula, half in bracket x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2, bracket complete. This is our regular formula. Am I right? Look here. Area of triangle ABD is equal to half in bracket. This is our regular formula. Now look here. Sometime what students are doing, that I want to tell you first of all. Here I have considered ABD means this is x1 y1, a x1 y1, b x2 y2 and d x3 y3. Sometimes students are getting confusion. They are looking here A, B and C. Sometimes they are, while reminding or while considering triangle, they are taking point D,
बट while taking they are taking coordinates of point C. समझ में आ रहा है कुछ? ओके, दोज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C. C -1 -6. तो इधर लेते हुए क्या लेना है देखो, वी हैव टू कंसिडर A, B and this D means x1 y1 x2 y2 and x3 y3 because triangle name is ABD. okay, now we'll put the value. area of शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे ABD is equal to हाफ इन ब्रैकेट, पुट करो वैल्यू, A की x1 y1, B की x2 y2 और D की x3 y3 लेना है. ओके, पुट करो वैल्यू क्या आता है देखो, -5 इन ब्रैकेट -5 -5 प्लस -4 इन ब्रैकेट 5 - 7 प्लस 4 इन ब्रैकेट 7 माइनस, इन ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि -5 है, -5 ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, समझ में आ रहा है? देखो इधर अभी सॉल्व करेंगे. यू नो दैट एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट -5 -5 -10. गलती से भी 0 नहीं लिखना है, गलती से भी +10 भी नहीं लिखना है. ओके, देन नेक्स्ट माइनस इंटू प्लस, इधर देखो प्लस इंटू माइनस, -4 इन ब्रैकेट 5 - 7 -2, 5 - 7 -2 प्लस 4 इन द ब्रैकेट 7 माइनस माइनस प्लस. ओके, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस 5 × 10 50 माइनस माइनस प्लस 4 × 2 8 प्लस, अभी इधर भी डायरेक्ट लिखेंगे देखो 4 7 + 5 क्या हो गया 12, यानी कि 12 × 4 48. ओके, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट, ओके डायरेक्ट लिखेंगे देखो इधर 106. तो आगे क्या आएगा, 106 को डिवाइड करो, 106 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 53 स्क्वायर यूनिट्स. प्लस में आया आंसर, तो ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आंसर क्या आ गया 53 स्क्वायर यूनिट्स. ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है देखो इधर हमने लिखा है BCD, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3. ओके, समझ में आ रहा है? ओके, नाउ लुक हियर, वी विल स्टार्ट BCD. फॉर्मूला वही लिखना है हमें, फिर से x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ब्रैकेट कंप्लीट. फार्मूला हमें जो मालूम है, रेगुलर फार्मूला मैंने लिखा है, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट, अभी वैल्यू पुट करो, अभी हमें मालूम है वैल्यू पुट करना कैसा है, -4 इन ब्रैकेट -6 -5 प्लस -1 इन ब्रैकेट 5 -5 प्लस 4 इन ब्रैकेट -5 -6 ब्रैकेट कंप्लीट. ओके, अभी इसके दो पार्ट बना देता हूँ मैं इधर फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए. मैं इधर लिखता हूँ देखो, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे अभी, हाफ इन ब्रैकेट क्या आता है देखो, -4 -6 -5 यानी कि -4 × -11. इधर देखो -1 5 माइनस माइनस प्लस होगा, यानी कि 10 × -1. समझ में आ रहा है? प्लस, करेक्ट ना, -1 × 10. ओके, बीच में प्लस साइन है, प्लस 4 -5 माइनस माइनस प्लस -5 4 इन ब्रैकेट -5 प्लस 6 ब्रैकेट कंप्लीट. एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू, एरिया ऑफ BCD इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट, अंदर लिखो माइनस माइनस प्लस 11 × 4 44, करेक्ट. 1 × -1 -1 × 10 -10. इधर देखो -5 + 6 यानी कि +1 आएगा,
1 इंटू 4 यानी कि +4। ओके, तो एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट क्या आएगा 38। तो 38 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 19। इधर लिखता हूँ देखो, एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू 19 स्क्वायर यूनिट्स। 19 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ बी सी डी, यानी कि 2 को हमने किससे डिवाइड किया 38 को, 38 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 19, यानी कि एरिया ऑफ बी सी डी इज इक्वल टू 19 स्क्वायर यूनिट्स। अभी देखो इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। हमने ए बी डी का एरिया फाइंड आउट किया इधर 53 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी का भी एरिया इधर फाइंड आउट किया है 19 स्क्वायर यूनिट्स। क्या है 19 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें इधर आंसर पूरी तरह से मिल जाएगा। ओके, मैं इधर अभी ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो इधर तुम्हें पूरी तरह से समझ में आएगा। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? लुक हियर, आई विल शो यू। कंसीडर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एरिया ऑफ, फिर से लिखता हूँ, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है पहला ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल ए बी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है समझ में आ रहा है क्या? क्या लिखा हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू, ये एरिया हमने फाइंड आउट किया 53, ये भी एरिया हमने फाइंड आउट किया 19, करेक्ट है ना? 53 और 19 ऐड करो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू 53 प्लस 19 कितने हो गए, 53 प्लस 19 72 स्क्वायर यूनिट्स, 72 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है 72 स्क्वायर यूनिट्स। समझ में आ रहा है? यू अंडरस्टैंड? एक पेज पे भी मैंने लिखा है स्मॉल तरह से, मैं भी दिखा रहा हूँ, देखो समझ में आएगा। वही एग्जाम्पल है अपना, if a -5 7, b -4 -5, c -1 6 and d 4 5 are the vertices of quadrilateral, find the area of quadrilateral ABCD। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज जो मैंने फिगर दिखाई थी वही फिगर इधर है, बाद में ये जो पॉइंट्स हैं, हियर एरिया ऑफ सॉरी हियर a पॉइंट -5 7 एज इट इज़ कॉपी किया इधर से, ओके, आर द vertices of quadrilateral ABCD। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। अभी इधर भी मैंने वही लिखा था इक्वेशन 1 कंसिडर करते वक्त, ओके। तो बाद में हमने एरिया फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ ए बी डी, तो ए x1 y1 b x2 y2 d x3 y3, हाँ गलती से भी सी मत लेना, ओके। तो फार्मूला लिखा, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमें आंसर आया 53 स्क्वायर यूनिट्स। बाद में हमने बी सी डी का एरिया फाइंड आउट किया, करेक्ट है ना? तो बी सी डी का एरिया हमें क्या मिला 19 स्क्वायर यूनिट्स, करेक्ट है? ऐसे हमने बी सी डी का एरिया फाइंड आउट किया। तो बी सी डी में कौन सा पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट कंसिडर करने हैं, देखो बी x1 y1, इधर देखो अच्छी तरह से बी x1 y1 c x2 y2 एंड डी x3 y3, ओके। तो इधर पॉइंट्स हमने फार्मूला लिखा, फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, बाद में हमें आंसर आया 19 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। तो आगे जाके क्या मिला हमें, इधर देखो मैंने लिखा है, जो मैंने अभी तुम्हें सॉल्व करके दिखाया वही एग्जांपल सेपरेट पेज पे। कंसीडर इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हमने कंसीडर किया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। हमने एडिशन किया तो आंसर आया 72 स्क्वायर यूनिट्स। ऐसे आंसर फाइंड आउट करना है। इधर मैंने प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल भी लिखा है, एग्जाम्पल रीड करता हूँ, देखो फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हुज वर्टाइसेस आर रिस्पेक्टिवली a11 b7 -3 c 12 2, ये क्या है 12 2 एंड d 7
21 एंड डी क्या है 7 21। तो हमें एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। आई होप सो यू गॉट आइडिया अबाउट दिस एग्जाम्पल्स। यू ट्राई हियर दिस coordinate geometry lesson which was going on. This lesson I am going to finish. Next lecture onwards I am going to start, next video onwards I am going to start the next lesson from your syllabus, that is polynomials. इसके बाद 7.3 एक्सरसाइज आती है, वो एक्सरसाइज के सारे टाइप्स मैंने इधर लिए हैं। ओके, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा भेज दो व्हाट्सएप पे, आई विल सॉल्व एंड आई विल शो यू। एनी भी डाउट्स है तो कोई भी डाउट्स बोल सकते हो। ओके, थैंक यू।